carefully. So we will discuss that in detail. So let me start today's discussion with introduction to relational model. So as I have discussed a little bit in brief about relational model in chapter number 1 also. So here you can see this is the example of a relation. So basically you all know that the data is stored in the form of tables. So whenever we talk about relational model, तो यहाँ पर हम table को relation बोलते हैं. And you all know table consists of rows and column. तो relational model की जब हम बात करेंगे तो हम rows को tuples भी बोलते हैं या tuples ही बोलते हैं, better to say अगर हम relational model की बात करें. And attributes columns को हम attributes बोलते हैं. So these are two different names, or better to say three different names. Tables are called as relations in relational model. Columns are known as attributes. And rows of a table or rows of a relation are known as tuples. So this is the very first thing which you must remember. So now you can see this is example of a relation, and इस relation का नाम instructor था जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं. Now you can see this relation consists of 4 different attributes with the name ID, name, department name, and salary. And I think there are 10 to 12 different tuples which are there in the this relation, and tuple simply represents records, or they are representing 12 different instructors in any organization or in any university. Now attribute types. So the set of allowed values for each attribute is known as domain of the attribute. तो यहाँ पर हमने बात की एट्रीब्यूट्स की, तो टेबल्स के जो कॉलम होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं. एक नई टर्म यहाँ पर आ गई डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट. तो डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट क्या है? हर एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज होंगी. उस सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज को उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए जो भी सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज होंगी उसको हम डोमेन बोलते हैं. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हम एम्प्लॉय या इंस्ट्रक्टर आईडी की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे के सारे सिर्फ नंबर्स ही हैं. तो यहाँ पर हम कैरेक्टर्स नहीं दे रहे. तो इस पर्टिकुलर आईडी एट्रीब्यूट के लिए जो सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज हैं वो integers हो गए या digits हो गए, means strings or characters are not allowed. Similarly, if we talk about second and third attribute of this relation, name and department name, so you all know यहाँ पर we are going to give the character values, the string values. Here the numbers, digits are not allowed. Similarly, if we talk about the last attribute, so here the domain of this salary attribute is the set of numbers, and even we can define a range that minimum 20,000 salary and maximum 1 lakh salary. That means salary वाले attribute के अंदर हम जो भी data insert करने वाले हैं वो सबसे पहले तो कोई ना कोई number होना चाहिए, and second important thing is कि वो 20,000 से 1 lakh के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो ये हम कैसे करेंगे? Constraints apply, so that we will learn in the lab. So here we have to learn that for every attribute, for each attribute, set of allowed values for that attribute is known as domain of the attribute. And attribute values are generally required to be atomic. That means indivisible, and indivisible simply means the values should not be divided further. So मैं एक छोटा सा example देता हूँ, यहाँ पर given नहीं है. So we all know that जो हमारा name होता है वो generally 2 या 3 different names में further divided होता है, like first name, middle name and the last name. तो यहाँ पर इंडिविजिबल या एटॉमिक कहने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट का टेबल है या एम्प्लॉय का टेबल है, तो अगर उसमें मैं नेम वाला एक कॉलम रखता हूँ, नेम वाला एक एट्रीब्यूट रखता हूँ, तो वहाँ पर मैं अगर 3 वैल्यूज दे रहा हूँ, लाइक अजय प्रताप सिंह, समथिंग लाइक दैट. सो बेटर अप्रोच क्या है कि मैं 3 अलग अलग कॉलम्स बना दूँ, एक फर्स्ट नेम का, एक मिडल नेम का और एक लास्ट नेम का, सो दैट हर कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो सिंगल वैल्यू आए, वो एटॉमिक वैल्यू आए, वो फर्दर जिसको हम डिवाइड ना कर सकें कुछ इस तरह की वैल्यू आए. तो नेम हमारा फर्दर डिवाइड हो सकता है फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम में. सिमिलरली अगर हम एड्रेस की बात करें तो अगर मैं एक कॉलम बना दूं सिर्फ एड्रेस का, तो उसमें बहुत बड़ी डेटा वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लाइक कोई भी एड्रेस है, हाउस नंबर 20 दिस
region and near the school, and then the state, city, state, and then the pin code. So better है instead of having one attribute of address, we divide that attribute into some more columns so that हर column के अंदर हमारे पास single value आए. तो generally this is required but not mandatory always. And as you can see, the special value null is a member of every domain. तो भाई null को हमने कल लैब में डिस्कस किया. हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया था. उस स्टूडेंट के अंदर हमने 4 कॉलम्स रखे थे, रोल नंबर, नेम, एज एंड सिटी. तो हमने पहली 3-4 रोज के बाद एक ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कराया था जहां पर एज की वैल्यू नल थी, और उसके बाद एक नेक्स्ट रो में हमने सिटी की वैल्यू को नल रखना सीखा था कि कैसे हम नल रख सकते हैं. तो कल भी मैंने डिस्कस किया था लैब में, नल सिंपली मीन्स आइदर द वैल्यू इज नॉट नोन और द वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. सो हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन नहीं हो, सो फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट मोबाइल वाले एट्रीब्यूट की जो वैल्यू आएगी वो हम नल रख सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी स्पेशल वैल्यू नल. सो दिस नल इज अ मेंबर ऑफ एवरी डोमेन. तो नल हम कभी भी कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं. एंड नल क्या इंडिकेट करता है? दैट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज अननोन. And null can cause some kind of complications in definition of many operations, so that we will see in lab how null is going to create some problem for all of us. And schema क्या है और instance क्या है बहुत बार डिस्कस हो चुका है, तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. तो अगर मेरे टेबल के अंदर बड़े सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल A से, सो A1 to AN अगर मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पर R इज इक्वल है. तो ये अगर हमारे पास सैंपल रिलेशन है, एक सैंपल टेबल है, तो अगर मुझे इस टेबल को स्कीमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज द एग्जांपल व्हिच यू कैन सी हियर. This is the name of the relation, which is instructor, and these are the 4 different attributes. So this is known as the schema of this instructor relation. एंड इंस्टांस की भी हमने बात की थी कि इंस्टांस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उस रिलेशन के अंदर जो डेटा एग्जिस्ट करता है वो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस रिलेशन का इंस्टांस है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस मोमेंट में हमें ये एग्जांपल गिवन है. सो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम you can see this relation consists of 4 attributes and the record of 12 instructor. So हो सकता है कुछ टाइम के बाद कोई इंस्ट्रक्टर यहाँ से छोड़कर चला जाए, तो डेफिनेटली we are going to delete that particular record. So for उस टाइम पर जब हम उस टेबल का डेटा को चेक करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पर 10 ही रिकॉर्ड्स हों, सो वो उस टाइम के लिए रिलेशनल इंस्टेंस हो जाएगा. So this is about relational schema and instance. And an element T of R is a tuple represented by a row in a table. So basically relation को हम R से represent करते हैं. It can be small r or capital R. तो बेसिकली अगर मैं एक और वे में डिफाइन करूँ रिलेशन को, तो रिलेशन कुछ नहीं है, इट इज सेट ऑफ टपल्स. तो रिलेशन के अंदर क्या है, अलग अलग रोज हैं और सेट ऑफ टपल्स को हम रिलेशन बोलते हैं. एंड बेसिकली आप सब लोगों ने सेट की डेफिनेशन को पढ़ा होगा कभी ना कभी 11th क्लास 12th क्लास के मैथमेटिक्स में. सो सेट कुछ नहीं होता, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट. तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, सेम elements allowed नहीं होते. So this same concept is applied to the case of relation. So relation को हमने अभी just define किया, it is collection of or set of tuples. So that means किसी भी रिलेशन के अंदर 2 टपल्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, 2 डिस्टिंक्ट 2 एग्जैक्टली सेम टपल्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए. तो सिंपल सा एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो, कोई भी 2 रो आप पिक करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी. ऐसा हो सकता है कुछ एट्रीब्यूट्स के लिए वैल्यू सेम हो, लेकिन एक एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वैल्यू डिफर कर रही हो. तो एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं सिर्फ रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ही स्टोर करा रहा हूँ, तो अगर 3 स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि तीनों का नाम रोहित शर्मा हो, तो वो फर्स्ट नेम रोहित आएगा और लास्ट नेम शर्मा आएगा, लेकिन जो रोल नंबर है वो तीनों स्टूडेंट्स के डेफिनेटली डिफरेंट होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट जो तीनों रोज हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगी एक दूसरे से. तो अगर मेरे पास
रोल नंबर वाला कॉलम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, और अगर तीनों स्टूडेंट्स का नाम रोहित शर्मा है तो भाई दैट इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि कोई भी दो रोज किसी भी टेबल की, किसी भी रिलेशन की एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई हमारे टेबल में हमेशा एटलीस्ट एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो जिसकी वैल्यू सारे के सारे रिकॉर्ड्स के लिए डिफरेंट हो। तो ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, और अभी हम कीज को डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। So this is what is the definition of relation. Relation is simply set of tuples. तो किसी भी सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती। सो सिमिलरली हमारे किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन में दो एग्जैक्टली सेम रोज नहीं हो सकती, किसी ना किसी कॉलम के लिए तो वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। देन स्कीमा क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और मेरे पास यहाँ एक और एग्जांपल है बड़ा ही अच्छा जो मैंने नवाथे की बुक से लिया है, तो भी आप देख सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ स्कीमा। तो अगर ये एक कंपनी का डेटाबेस है तो उस कंपनी के डेटाबेस को अगर हमें स्कीमा को डिफाइन करना है, सो यू कैन सी स्कीमा डायग्राम फॉर द कंपनी रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। तो एक हमने डेटाबेस बनाया कंपनी, उस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, हर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, और ये अंडरलाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप देख सकते हो जैसे मैं यूनिवर्सिटी के डेटाबेस की बात कर रहा था, तो यहाँ पर एक कंपनी का डेटाबेस, उस कंपनी के अंदर कितने टेबल्स, 6 टेबल्स हैं यहाँ पर, एक एम्प्लॉय का, एक डिपार्टमेंट का, एक डिपार्टमेंट अंडरस्कोर लोकेशंस, प्रोजेक्ट, वर्क्स ऑन का भी एक टेबल बनेगा। तो वर्क्स ऑन क्या है, ये रिलेशनशिप है जो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में बनेगा कि एम्प्लॉय वर्क्स ऑन एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। देन एक डिपेंडेंट का भी टेबल है। तो इस स्कीमा को देख के मुझे बड़ी सारी चीजें पता चल जाएंगी, अब आप लोगों को भी बड़ी सारी चीजें पता चल जाएंगी कि स्कीमा है क्या। तो मुझे पता लग गया कि एक कंपनी नाम का डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर 6 अलग अलग टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, एक डिपेंडेंट के लिए, एंड सो ऑन। एम्प्लॉय के लिए हम क्या क्या डिटेल स्टोर करा रहे हैं, ये उनके एट्रीब्यूट्स हो गए, डिपार्टमेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोजेक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, डिपेंडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और जिन एट्रीब्यूट्स के नीचे अंडरलाइन हुआ है वो उस स्पेसिफिक टेबल की प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की क्या होती है वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह सिर्फ स्कीमा देख के ही हमें बड़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो स्कीमा के अंदर एक्चुअल डेटा नहीं होता, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है। तो मुझे इजीली पता चल गया कि कंपनी डेटाबेस के अंदर 6 टेबल्स हैं और हर टेबल के अंदर इतने कॉलम्स हैं, और उस पर्टिकुलर टेबल की ये प्राइमरी की है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस स्कीमा को फिर डेटा से फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये फिर एम्प्लॉय टेबल बना, फिर ये डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ, देन डिपार्टमेंट अंडरस्कोर लोकेशंस, देन प्रोजेक्ट के लिए एक टेबल बना, देन डिपेंडेंट के लिए टेबल बना। तो बेसिकली स्कीमा हमें स्ट्रक्चर का आइडिया देता है कि क्या क्या हो सकता है। और इंस्टांस की अगर हमने बात की तो फिर इंस्टांस यही हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी डेटा इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सारा क्या है, सो दैट एवरीथिंग इज अ instance for that particular time. Okay, another property of any relation is relations are unordered. Order of tuples is irrelevant in any relation. तो भाई ये मैटर नहीं करता कि मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था रोल नंबर 1 का किया था तो वो रोल नंबर 1 सबसे नीचे क्यों पहुंच गया। तो हमारा मेन थिंग है कि जो हमने इंसर्ट किए हैं रिकॉर्ड्स, जो टपल्स हमने इंसर्ट किए वो एग्जिस्ट करने चाहिए हमारे रिलेशन के अंदर, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो आपको पता होगा मैंने अभी जस्ट रिलेशन को एक सेट से कंपेयर किया, तो सेट के अंदर अगर 1 to 3 एलिमेंट है या 3 to 1 एलिमेंट है, दैट डजंट मैटर, होना चाहिए। मेन थिंग इज दैट सेट्स आर ऑलवेज अनऑर्डर्ड, सो दैट्स व्हाई रिलेशंस के अंदर जो टपल्स हैं वो भी उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती, सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर भी रिलेशन के अंदर भी जो पूरा एक टपल है, पूरा एक रो है, वो हमेशा दूसरे रो से डिस्टिंक्ट होगा। कभी भी सारे के सारे कॉलम्स के लिए 2 रोज की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कहो कि यहाँ पे फिजिक्स आ गया, यहाँ पे फिजिक्स आ गया तो ये तो सेम हो गई, ऐसा नहीं। पूरे के पूरे 4 कॉलम्स के लिए एग्जैक्टली। तो अगर यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है एज इट इज, यहाँ पर दोबारा कहीं पर रिपीट नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट सेट की प्रॉपर्टी से, सेट की डेफिनेशन से। सो एग्जैक्टली आप किसी भी टेबल को, किसी भी रिलेशन को सेट से कंपेयर कर सकते हो। तो जो जो सेट की प्रॉपर्टीज हैं
डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहेंगे तो रिलेशन के अंदर डिस्टिंक्ट टपल्स रहेंगे, और सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो टपल्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, तो रोज हमारी ऊपर नीचे हो सकती है, दैट डजंट मैटर, होनी चाहिए, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। Sir, if we add any attribute like serial number, then it will create a problem. Where? So, like you have said that it doesn't matter that rows are interchanged. If we create before ID, we create a option or attribute for serial number. Yes. Yeah, definitely that will going to have problem, because अगर हम चाहते हैं कि उसी सीरियल नंबर में हो, बट हम उस तरह का डेटा इंसर्ट ही नहीं कराते, तो आप कभी भी देखोगे यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर का टेबल है या स्टूडेंट का टेबल भी हमने कल बनाया था, तो वहां पर हम कभी भी सीरियल नंबर नहीं लेते, हम डायरेक्ट जो एग्जैक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, जो एग्जैक्ट फीचर्स या प्रॉपर्टीज हैं उस एंटिटी की, सो हम सिर्फ वही अपने रिलेशन में एज एट्रीब्यूट इंसर्ट करते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, चलो, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कीज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको जरा ध्यान से समझना कि कीज होती क्या है। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में कुछ अलग अलग नाम दिख रहे होंगे, एक लिखा हुआ है सुपर की, एक लिखा हुआ है कैंडिडेट की, एक लिखा हुआ है प्राइमरी की, और एक लिखा हुआ है फॉरेन की। तो भाई कुछ अलग अलग तरह की कीज होती हैं, तो इसे आज हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना है, तो इसको जरा ध्यान से समझना, और अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो इन बिटवीन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहली बात तो की के रिगार्डिंग ये है कि की कुछ नहीं होती, की हमारे एट्रीब्यूट्स को ही हम बोल रहे हैं। सो जस्ट लाइक मैं अगर इस टेबल की बात करूं, तो यहाँ पर यू ऑल नो दैट देयर आर 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है। तो कीज या तो एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकती है, या फिर अगर मेरा सिंगल एट्रीब्यूट से काम नहीं चलेगा, देन मैं क्या करूंगा, एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर दूंगा। आईडी और नेम का मैंने एक पेयर बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। या फिर मैंने आईडी और डिपार्टमेंट नेम का एक पेयर बना दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले ये समझना है कि हम की बोलते किसको हैं। तो भाई की हम या तो वो सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो वो हमारे कीज होते हैं। उसके बाद कीज की रिक्वायरमेंट की क्यों है, की हमें क्यों यूज करनी है, वो हमें आज समझना है। तो भाई मैं बड़े ही सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कीज का पर्पस क्या है, और उसके बाद फिर हम अलग अलग टाइप्स की कीज में डिफरेंस देखेंगे। तो भाई मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, जो इंस्ट्रक्टर नाम का एक टेबल बना हुआ है, तो मुझे किसी एक इंस्ट्रक्टर, ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, देखो 12 ही रिकॉर्ड्स हैं इसमें, 12 ही टपल्स हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज 500 एम्प्लॉयज हैं या 500 इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेना, बट हमें यहाँ पर कीज का कॉन्सेप्ट समझना है, तो हम एक छोटा सा टेबल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो या फिर मैं चलो पहले स्टूडेंट की बात करता हूँ, वो थोड़ा सा और इजी आपको समझ आएगा। तो कल लैब में हमने एक टेबल बनाया था, रोल नंबर, नेम, एज एंड सिटी। तो उस टाइम तो हम सिर्फ 5 to 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करा रहे थे। तो सपोज करते हैं एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर JUIT के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबका रिकॉर्ड स्टोर है, अप्रोक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट। तो कीज का काम क्या होता है, कीज यूज कब होती हैं, सपोज उन 2000 स्टूडेंट में से मुझे एग्जैक्टली एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाना है, और मेरे पास बुलाने के लिए ऑप्शन क्या है, मैं किसी ना किसी एट्रीब्यूट की, किसी ना किसी कॉलम की हेल्प लेके ही उस स्टूडेंट को बुलाऊंगा। क्योंकि हम कीज की बात कर रहे हैं, तो कीज मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कीज और कुछ नहीं है, वो एट्रीब्यूट को ही हम की बोल रहे हैं। तो वो एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, या फिर वो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि मैं एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर दूंगा। कब करूंगा, जब मेरा सिंगल से काम नहीं चलता, तो उसको हम अभी देखेंगे। तो आप लोग एज्यूम करो रोल नंबर है, नेम है, एज है और सिटी है, ये 4 कॉलम्स हैं जो हमने कल लैब में बनाने सीखे, और पूरे 2000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर स्टोर है, यानी कि हर स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, नेम, एज एंड सिटी। तो मुझे एग्जैक्टली एक स्टूडेंट को बुलाना है, तो भाई सबसे बेटर अप्रोच क्या रहेगी, क्या मैं नेम वाले कॉलम को यूज कर सकता हूँ कि मैं ये बोल दूं, अनाउंसमेंट कर दूं कि जिस स्टूडेंट का नेम राहुल है वो मेरे पास आ जाए। तो क्या वो बेटर अप्रोच रहेगी, कोई बताएगा? रोल नंबर सर, क्या प्रॉब्लम आएगी उस केस में? नेम्स कैन बी सेम।
ओके, सो 2000 स्टूडेंट में हो सकता है 50 अलग अलग राहुल नाम से स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हो। तो अगर मैंने किसी को बोल दिया कि राहुल नाम के स्टूडेंट को मेरे पास भेज दो, तो भाई हो सकता है कि 50 स्टूडेंट मेरे सामने आके खड़े हो जाएं और मुझे चाहिए एग्जैक्टली एक आउटपुट। तो जो की का बेसिक पर्पज है वो सिर्फ यही है कि मेरे रिलेशन के अंदर चाहे 10 रोज हैं या 10,000 रोज हैं, मुझे आउटपुट में एग्जैक्टली एक रो चाहिए, एग्जैक्टली एक आउटपुट चाहिए। तो मैं उसको एक बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। सेकेंड एट्रीब्यूट की बात करें, अगर मैं ये बोल दूं कि जिस स्टूडेंट की एज 21 है, मुझे पता है कि वो राहुल की एज 21 है, तो मैं अगर ये बोल दूं कि वो 21 एज वाले स्टूडेंट को मेरे पास भेज दो, व्हाट अबाउट दैट, क्या होगा? ठीक रहेगी ये अप्रोच? No, sir. रीजन? Age can also be same. ओके, सेम प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है कि चलो राहुल तो सिर्फ 50 ही थे, लेकिन 21 एज वाले 150 बच्चे हों, 200 बच्चे हों 2000 में से, तो वो सारे के सारे आ जाएं, क्योंकि मैंने सिर्फ यही बोला कि मुझे वो वाला स्टूडेंट मेरे पास सेंड कर दो, स्टूडेंट को जिसकी एज 21 है। चलो लास्ट कॉलम की बात करें, सिटी। मैं बोल दूं कि उस स्टूडेंट को भेजो जो चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि वो राहुल जो मुझे एग्जैक्टली जिसको बुलाना है वो चंडीगढ़ से है। नाउ व्हाट विल हैपन? It's a wrong approach. रॉन्ग अप्रोच, सेम प्रॉब्लम रहेगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो, तो वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। तो भाई एक ही कॉलम बचा मेरे पास जो है कि रोल नंबर। तो अगर मैं ये बोलूं कि रोल नंबर 201553 को मेरे पास भेज दो, मुझे पता है कि राहुल का रोल नंबर ये है, सो उस केस में क्या होगा, कौन बताएगा कितने स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मेरे पास आएंगे? So that particular. हाँ, So that particular student will come. ओके, सो वो एक ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यू को अगर मैं यूज करूं तो एग्जैक्टली एक आउटपुट मुझे मिलेगी, एग्जैक्टली वही स्टूडेंट मेरे पास आएगा जिसको मुझे बुलाना है। बिकॉज पूरी यूनिवर्सिटी की भी अगर हम बात करें तो रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता, चाहे कोर्सेज अलग हो जाएं, चाहे ब्रांच अलग हो जाए, चाहे ईयर अलग हो जाए। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है वो टोटली डिस्टिंक्ट होता है। तो यही काम हमारा की करती है। की का जो मेन पर्पस है वो वाला कॉलम हमें आइडेंटिफाई करना है, वो वाला एट्रीब्यूट हमें आइडेंटिफाई करना है अपने टेबल में जो मुझे यूनिकनेस प्रोवाइड करे, जो मुझे आउटपुट में क्या रिटर्न करे वो यूनिक टपल रिटर्न करके दे दे। तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं नेम यूज करूंगा तो नेम के केस में हो सकता है कि बड़े सारे स्टूडेंट्स का सेम नेम राहुल हो, एज हो सकता है बड़े सारे स्टूडेंट्स की सेम हो, सिमिलरली हो सकता है कि बड़े सारे स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक सिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन रोल नंबर वाला कॉलम उस टेबल में एक ऐसा स्पेसिफिक कॉलम है जिस कॉलम की वैल्यू सभी के सभी रिकॉर्ड्स के लिए, चाहे मेरे टेबल के अंदर 10 रोज हैं या 10,000 रोज हैं, रोल नंबर की वैल्यू कभी भी दो स्टूडेंट्स के लिए सेम नहीं हो सकती। तो सबसे बेटर अप्रोच यही रहेगी कि मैं ये बोलूं कि रोल नंबर के थ्रू मैं उस स्टूडेंट को कॉल करूं तो डेफिनेटली एक ही स्टूडेंट मेरे पास आएगा। तो ये काम है कीज का। तो ये जो काम कर रही है रोल नंबर वाली की, उस की को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। तो भाई कैंडिडेट की सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। कैंडिडेट की वो की हो गई जो किसी भी रिलेशन के अंदर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी। डेफिनेटली अगर मैं कोई और रोल नंबर बोलूंगा तब भी एग्जैक्टली एक ही स्टूडेंट आएगा, मैं कोई थर्ड रोल नंबर बोलूंगा तब भी एग्जैक्टली एक ही स्टूडेंट आएगा। तो बड़े ही सिंपल सा कंक्लूजन में अगर आप समझो तो की का जो पर्पस है वो यही है कि मेरे टेबल के अंदर चाहे 1 लाख रोज हो, मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे एग्जैक्टली जो रो अपने आउटपुट में चाहिए सिर्फ एक आउटपुट रिटर्न करे। सो दैट शुड बी द टास्क ऑफ की। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन प्लीज आस्क मी। आई होप थिंग इज क्लियर। स्टूडेंट के केस में रोल नंबर हमेशा हमारी प्राइमरी की रहेगी। एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय कोड हमेशा प्राइमरी की का काम करेगा, या कैंडिडेट की का भी, चलो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो कैंडिडेट की का काम करेगा। और व्हीकल्स आप सब लोगों को पता होगा, तो व्हीकल, हर व्हीकल का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सो दैट कैन नॉट बी सेम फॉर एनी 2 व्हीकल्स। हर एक व्हीकल का अपना एक इंजन नंबर होता है, एक चेसिस नंबर होता है। तो ये सारे कैंडिडेट कीज का काम करते हैं। तो बेसिक आइडिया हमें समझना है कि कीज है क्या।
पूरे रिलेशन के अंदर मेरे जितने भी कॉलम्स हैं या जितने भी एट्रीब्यूट हैं, उन एट्रीब्यूट में से मैं वो एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज करके मैं 10,000 10 लाख वाले रोज वाले टेबल में से एग्जैक्टली एक टपल को एज आउटपुट निकाल पा रहा हूँ। चलो, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। और मैंने बोला कि रोल नंबर कैंडिडेट की है, और सिमिलरली जो रोल नंबर जो हमारा ये काम हमें चाहिए, आउटपुट जिस तरह की चाहिए वो हमें दे देगा। अब आप लोगों के सामने एक टेबल है, इस टेबल में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी कैंडिडेट की पॉसिबल है? इंस्ट्रक्टर नाम से टेबल है, ID is one attribute, name is one attribute, department name is one attribute and salary is another attribute। तो यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओगे कि कौन कौन सी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं? कौन बताएगा? ID and salary। Third set of ID and name। ओके, चलो सबसे पहले मिनिमम से बात करते हैं, बिकॉज कैंडिडेट की का जो कॉन्सेप्ट है वो ही मिनिमैलिटी पे बेस्ड है। मैं वन बाय वन पूछता हूँ आप लोगों से, क्या पहला एट्रीब्यूट जो है ID वाला वो एज कैंडिडेट की काम कर सकता है? Yes sir। Yes sir। रीजन? Every ID is unique। ठीक है, सो जस्ट लाइक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के लिए इंस्ट्रक्टर ID, या इसे आप एम्प्लॉय कोड समझ सकते हो। तो भाई ये कभी भी किसी भी दो इंस्ट्रक्टर के लिए सेम नहीं होगा, तो मैं ID एट्रीब्यूट को हमेशा एज कैंडिडेट की यूज कर सकता हूँ। मुझे कोई भी रिकॉर्ड चाहिए हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर ID इज इक्वल्स टू दिस, सो डेफिनेटली मुझे हमेशा हर बार सिर्फ एक ही रो, एक ही टपल एज आउटपुट मिलेगा। चलो नेम की बात करते हैं। नेम एट्रीब्यूट को क्या हम कैंडिडेट की यूज कर सकते हैं? Yes, for in this case we can use it। ओके, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया, तो भाई अभी के डेटा के अकॉर्डिंग 12 इंस्ट्रक्टर हैं, तो 12 के 12 जो इंस्ट्रक्टर हैं जो उनके नेम है वो टोटली डिस्टिंक्ट हैं। तो अभी के हिसाब से, इस इंस्टेंस के हिसाब से डेफिनेटली हम नेम को कैंडिडेट की भी रख सकते हैं, बिकॉज सभी के 12 जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका नेम डिफरेंट है। लेकिन इन फ्यूचर में बात करूं, कोई नया इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करे तो क्या उस केस में एक पॉसिबिलिटी है कि किसी का नेम आइंस्टीन या किम, गोल्ड, सिंह कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी। सो लेकिन ID कभी भी नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्टर आएगा उसकी सेम नहीं होगी। तो इस इंस्टेंस के अकॉर्डिंग नेम हमारा कैंडिडेट की हो सकता है, बट रियल लाइफ सिनेरियो में अगर सोचें, प्रैक्टिकली सोचें, तो नेम हम कभी भी कैंडिडेट की नहीं बनाएंगे। चलो डिपार्टमेंट नेम बताओ। No sir। No sir। रीजन? So because number of departments are coming again and again। यस, ठीक है, क्लियर है। की का आइडिया, कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि यार मुझे वो वाला इंस्ट्रक्टर भेज दो जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 इंस्ट्रक्टर हैं तो दोनों आ जाएंगे। तो मेरे की का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हुआ। मुझे चाहिए एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्टर जो मुझे जिससे मुझे काम है। तो आप देख सकते हो फिजिक्स में भी हैं, कंप्यूटर साइंस में भी 3 इंस्ट्रक्टर हैं, बायोलॉजी में नो डाउट 1 है, बट हमारे पास तो सारे के सारे रोल्स के लिए वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तभी हम उसे की बना सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट सैलरी? Yes sir। No sir। Yes sir। Sir, for this record। For this record, what about 80,000? Row number 5 and last No row? sir, it cannot be। Yes sir। Yes sir। तो 80,000। यहाँ पर भी आप देखोगे सैलरी में 2 रोज हैं जिनकी वैल्यू सेम है, बाकी तो आई थिंक सबके लिए डिस्टिंक्ट हैं। तो अगर ये 80,000 रिपीट ना होता तो इस इंस्टेंस के अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट की बना सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक भी वैल्यू अगर रिपीट हो गई, तो अगर मैं उसी एम्प्लॉय की बात करूं, उसी इंस्ट्रक्टर को भेजो यार जिसकी सैलरी 80,000 है, तो फिर से क्या होगा भाई, किम भी आकर खड़ा हो जाएगा और सिंह भी आके खड़ा हो जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास जो की का कॉन्सेप्ट है फिर से वायलेट हो जाएगा। की का एक ही कॉन्सेप्ट है, हमेशा आउटपुट में एग्जैक्टली 1 रो रिटर्न हो, और वो हमेशा कब होएगी, जो हमारी रियल लाइफ सिनेरियो की बात करेंगे, अगर मैं एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट की हेल्प लेने वाला हूँ उस आउटपुट को रिट्रीव करने के लिए। तो कैंडिडेट की वो वाली की होती है जिसकी हेल्प से हम अपने रिलेशन में एक यूनिक टपल को आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर मुझे आइंस्टीन को बुलाना है तो मैं ID को यूज करूंगा तो आइंस्टीन ही आएगा, अगर मुझे किम को बुलाना है तो मैं उसकी ID से बुलाऊंगा तो एग्जैक्टली वही आएगा। सेम केस रोल नंबर जो है वो कैंडिडेट की है स्टूडेंट टेबल के लिए। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है।
अब बात आती है भाई प्राइमरी की। प्राइमरी की कुछ नहीं होती, अगर मेरे टेबल के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट की एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पर ये एग्जांपल ले लेता हूँ, आईडी भी कैंडिडेट की बन सकती है, बिकॉज आईडी भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी टपल को। सिमिलरली इस डेटा के अकॉर्डिंग नेम भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने ही बताया। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आईडी भी कैंडिडेट की है और नेम भी कैंडिडेट की है। इन दो कैंडिडेट कीज में से मैं किसी एक कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाऊंगा, तो उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं, और जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बनती उसे हम ऑल्टरनेट की बोलते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, और ये काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। तो चलो यहाँ तो हमें बड़ी इजीली समझ आ गया कि फर्दर अगर कोई इंस्ट्रक्टर आए तो नेम की रिपीटिशन हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक्चुअल में हमारे पास एक से ज्यादा कैंडिडेट की एग्जिस्ट करती है। तो मैं एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, पर्सन्स की बात करते हैं। अगर मैं पर्सन नाम से टेबल बनाऊं, तो उस पर्सन का अगर मैं आधार नंबर भी स्टोर करा रहा हूँ और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर भी स्टोर करा रहा हूँ, तो डेफिनेटली इंडिया का कोई भी पर्सन हो, इन तीनों ही कॉलम्स के लिए जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं आधार नंबर भी कैंडिडेट की हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी कैंडिडेट की हो गया, और जो लास्ट है हमारा पासपोर्ट नंबर भी कैंडिडेट की हो गया। नाउ इट्स टोटली अप टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिजाइनर कि आउट ऑफ ऑल अवेलेबल कैंडिडेट कीज हम किसे प्राइमरी की बनाते हैं। तो ये टोटली डीबीए या डीबीडी का डिसीजन रहता है, और एक हमारी प्राइमरी की बन जाती है, और बाकी जो हमारी प्राइमरी की नहीं बनती, जो कैंडिडेट कीज प्राइमरी की नहीं बनती, उन्हें हम ऑल्टरनेटिव कीज बोलते हैं। और उसके बाद जो मेजर रोल रहता है वो प्राइमरी की का रहता है। प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई tuple uniquely from the relation, and most important thing, हर रिलेशन में एग्जैक्टली एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आईडी भी एक कैंडिडेट की है और नेम भी एक कैंडिडेट की है, लेकिन हमेशा यहाँ तो चलो पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर है कि हम डेफिनेटली आईडी को ही प्राइमरी की बनाने वाले हैं, और जो हमारी नेम होगा इस सिनारियो के अकॉर्डिंग वो एक ऑल्टरनेटिव की का काम करेगा। सो यहाँ तक किसी को डाउट है, प्लीज आस्क मी जस्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू सुपर की। एनी डाउट, एनीवन? Sir, on what basis we can choose the most suitable primary key? So that totally depends upon what kind of attributes, what kind of data, what kind of database we are having. तो अगर मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी में अगर मैं इसी टेबल की बात कर लूँ, तो मुझे पता है कि आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती, चाहे इसके बाद 50 और नए इंस्ट्रक्टर आ जाएं, लेकिन नेम सेम होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहीं से मुझे आइडिया लग गया कि मैं आईडी को ही प्राइमरी की बनाऊं, नेम को हम रहने देते हैं। क्लियर? Okay, sir. So there can be more than one alternate key. या डेफिनेटली अगर मेरे पास 4 कैंडिडेट कीज हैं, 4 अलग अलग कॉलम्स ऐसे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैं प्राइमरी की तो हमेशा एक ही होगी एक टेबल के लिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर जो बाकी 3 रह जाएंगी वो ऑल्टरनेटिव कीज का काम करेंगी। Yes, sir. क्लियर? हाँ, तो इस टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास 2 ही कैंडिडेट कीज हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो एक प्राइमरी हो गई, एक ऑल्टरनेटिव की हो गई। तो हो सकता है यहाँ पर एक और कॉलम होता, वो भी कैंडिडेट की का काम कर रहा होता। तो 3 कैंडिडेट कीज में से एक प्राइमरी की बनेगी, बाकी जितनी रह जाएंगी कैंडिडेट कीज वो ऑल्टरनेटिव कीज हो जाएंगी। चलो, अभी मैंने सुपर की बात नहीं करी है, सुपर की पे आते हैं। उससे पहले मैंने कैंडिडेट की बात कर ली, और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। की इज अ सुपर की, K is a super key of R if values of K are sufficient to identify a unique। चलो, कोई भी एट्रीब्यूट जो रिलेशन में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है उसे हम सुपर की बोलते हैं। तो भाई आईडी जो है वो कैंडिडेट की तो है ही है, साथ में सुपर की भी है। सिमिलरली मैं अगर नेम की बात करूं तो नेम कैंडिडेट की तो है ही है, साथ में सुपर की भी है। डिपार्टमेंट नेम सुपर की हो सकता है? बताओ भाई। So what is No, the sir. difference between super key and primary key? उस पे अभी आ रहे हैं। अभी जितनी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है सिर्फ उसके बेसिस पे बताओ। मैंने आपको ये कहा कि सुपर की कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए टपल्स को रिलेशन में। No, sir, it cannot. तो डिपार्टमेंट नेम सुपर की नहीं हो सकता, बिकॉज कंप्यूटर साइंस या डिपार्टमेंट नेम रिपीट हो रहे हैं। सिमिलरली सैलरी भी हमारा सुपर की नहीं हो सकता। चलो,
अब डिफरेंस की बात करते हैं कैंडिडेट की में और सुपर की में। तो भाई कैंडिडेट की में और सुपर की में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है, मिनिमैलिटी का। तो मिनिमैलिटी अगर हम यूज करेंगे, मिनिमैलिटी क्या बोलती है कि चलो उससे पहले मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर दूं, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं आईडी और नेम को अगर इकट्ठे कंबाइन कर दूं तो तब क्या मैं इस रिलेशन में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? Yes, Now sir. instead of only single attribute, I have combined two attributes ID and name. तो मैं अगर कुछ ऐसा बोलूँ, उस इंस्ट्रक्टर को मेरे पास भेजो जिसकी ID 12121 है और जिसका नेम वो है, वो मेरे पास आ जाए। तो ऐसे कितने इंस्ट्रक्टर हैं? 1. ओनली वन। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, अगर मैं आईडी और डिपार्टमेंट नेम को कंबाइन कर दूं, 15151 वाले इंस्ट्रक्टर को भेजो जिसका डिपार्टमेंट म्यूजिक है, तो ऐसे कितने इंस्ट्रक्टर हैं? 1. पर तो भी आप जरा ध्यान से सोचो, अभी तक मैं सिर्फ कैंडिडेट की बात कर रहा था, जहां पर मैंने देखा कि मेरा सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट से ही काम चल जाएगा, या फिर मैं सिर्फ नेम एट्रीब्यूट को भी लूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको कंबाइन करना स्टार्ट कर दूं, मैंने 2 का पेयर बनाया या फिर मैं 3 का पेयर बनाना स्टार्ट कर दूं, आईडी नेम और डिपार्टमेंट नेम से बुलाना शुरू कर दूं कि उस इंस्ट्रक्टर को भेजो जिसकी आईडी ये है, जिसका नेम ये है और जिस डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से है, तो भी आप देखोगे कि हमेशा मेरे पास आउटपुट में एक ही इंस्ट्रक्टर आएगा। रीजन बता सकता है कोई ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ा ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है ये। बिकॉज ऑफ आईडी। ओके, वेरी गुड। तो भाई यही रीजन है कि जब मुझे पता है कि जब सबकी आईडी ही यूनिक है, सारे इंस्ट्रक्टर्स के लिए आईडी ही यूनिक है, तो भाई मैं उसके साथ बाकी जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करता रहूं तो वो तो डेफिनेटली अलग ही आएंगे, बिकॉज आईडी सबके लिए यूनिक है। तो यही डिफरेंस है कैंडिडेट की में और सुपर की में। सुपर की में हम जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं, और अगर वो कंबाइन होने के बाद मेरे रिलेशन के अंदर टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो वो डेफिनेटली एक सुपर की है। लेकिन कैंडिडेट की क्या बोलती है कि यार अगर मेरा आईडी से ही काम चल रहा है तो मैं आईडी और नेम को कंबाइन क्यों करूं, मैं सिर्फ आईडी को ही यूज करूंगा। अगर मेरे पास, मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम डिफरेंट होने वाला है, तो मैं ऐसे क्यों बोलूं कि यार 101 स्टूडेंट को भेज दे जिसका नाम राहुल है। तो दिस इज व्हाट कैंडिडेट की सेज। कैंडिडेट की ऑलवेज टॉक्स अबाउट मिनिमैलिटी, कि कम से कम एट्रीब्यूट्स का यूज करके मैं अपने रिलेशन में से टपल्स को आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई, एक टपल रिटर्न कर पाऊं। सो दैट इज व्हाट इज द टास्क ऑफ कैंडिडेट की। लेकिन जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स को यूज करके भी अगर मैं एक से ज्यादा को भी यूज कर रहा हूं, यहाँ पर अगर मैं आईडी और डिपार्टमेंट नेम को अगर कंबाइन कर देता हूं, तब भी मुझे हमेशा एक यूनिक आउटपुट ही मिलेगी, बिकॉज वहां पर आईडी इन्वॉल्व है। लेकिन तब वो कैंडिडेट की नहीं रहेगी। रीजन बीइंग, आईडी और डिपार्टमेंट नेम को कंबाइन करने पर 2 एट्रीब्यूट हो गए जो वही काम कर रहे हैं, एक यूनिक टपल रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन वही काम मैं सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट से भी कर सकता हूं। तो सिर्फ आईडी अगर एट्रीब्यूट में यूज कर रहा हूं, मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो वो कैंडिडेट की है। और अगर मैं एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज कर रहा हूं तो वो बेसिकली मेरी सुपर की बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर आईडी ही वो रहेगा। तो अगर आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आईडी नाम से जो कॉलम है वो नहीं होता, तो फिर मेरे पास जो नेम है वो एक कैंडिडेट की होता, बिकॉज यहाँ पर नेम तो सारे यूनिक हैं। लेकिन अगर नेम में रिपीटिशन आ जाती तो आप देखो सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, तो मेरा एक एट्रीब्यूट से काम नहीं चलना था, तब मुझे कंबाइन करके ही कैंडिडेट की मिलती। तो ये डेटा पे डिपेंड करता है कौन कौन से एट्रीब्यूट मेरे टेबल के अंदर हैं और उन एट्रीब्यूट को कंबाइन करने पर मुझे क्या मिल रहा है। तो जो मैंने अभी लास्ट लाइन बोली है उसको जरा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। सपोज करो आईडी नाम वाला कॉलम इस टेबल में नहीं है और नेम में कहीं ना कहीं रिपीटिशन है, तो भाई नेम वाले कॉलम में भी रिपीटिशन हो गई, डिपार्टमेंट नेम में भी रिपीटिशन है, सैलरी में भी रिपीटिशन है। इंडिविजुअल एक एट्रीब्यूट को यूज करके हम टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करा सकते। तो उस केस में जो मेरी कैंडिडेट की बनेगी, मैं क्या करूंगा, 2 को कंबाइन करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मिनिमैलिटी रखनी है। तो 3 को तो मैं अगर करूंगा तो वो कैंडिडेट की नहीं होगी, बिकॉज अगर
मैं दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके रिलेशन को आइडेंटिफाई करा रहा हूँ, तो वो अगर मैं 3 से करा रहा हूँ तो डेफिनेटली मिनिमैलिटी किसमें है, 2 में। तो जो 2 वाली होगी वो मेरी कैंडिडेट की बन जाएगी और जो 3 वाली होगी वो सुपर की बन जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज एंड लेट मी रीड द थिंग्स। सो आप यहाँ देख सकते हो K is a super key of any relation R if values for K are sufficient to identify a unique tuple of each possible relation। एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो ID है वो सुपर की भी है डेफिनेटली, बिकॉज वो यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर ही रही है। सिमिलरली आईडी और नेम को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये भी एक सुपर की का काम करेगा। सिमिलरली आईडी, नेम और डिपार्टमेंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं वो भी एक सुपर की है। और इवन अगर मैं चारों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके आइडेंटिफाई करा रहा हूं तो वो भी एक सुपर की होती है। तो भी सुपर की के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जाती है, हर रिलेशन की एटलीस्ट एक सुपर की तो होती है। कि अगर मैं मान लूं कि ये सिर्फ आईडी अलग थी और नेम भी सारे स्टूडेंट्स, सारे इंस्ट्रक्टर के सेम है, डिपार्टमेंट नेम भी सेम है और सैलरी भी सेम है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सुपर की तो एटलीस्ट तब भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगी। तो मैं चारों के चारों एट्रीब्यूट्स को अगर कंबाइन करके डेटा को रिट्रीव करूंगा तो डेफिनेटली मुझे एक आउटपुट रिटर्न होगी। तो एवरी रिलेशन हैज एटलीस्ट वन सुपर की, और वो वन सुपर की कौन सी होगी, अगर मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दूं। क्यों? बिकॉज अभी हमने बोला कि कोई भी दो टपल्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते किसी भी रिलेशन में। तो यहाँ पर ये एग्जांपल था समझने के लिए। नाउ सुपर की अगर बात करें तो भाई सुपर की क्या बोलती है, सुपर की के इज अ कैंडिडेट की इफ के इज मिनिमल। तो सुपर की से ही कैंडिडेट की बनती है, दैट मीन्स कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। द ओनली कंडीशन इज दैट कम से कम एट्रीब्यूट्स का यूज होना चाहिए। तो अगर मैं किसी रिलेशन में टपल्स को आइडेंटिफाई करवा पा रहा हूँ दो एट्रीब्यूट्स की हेल्प से, तो मैं 3 को यूज क्यों करूंगा। तो अगर वो 3 एट्रीब्यूट यूज कर रहा है तो वो कैंडिडेट की नहीं होगा, वो सुपर की होगा। कैंडिडेट की हमेशा वही होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मिनिमम होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो आईडी कॉमा नेम के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स यूज हुए, लेकिन हमें जरूरत ही क्या है, जब मैं सिर्फ एक एट्रीब्यूट का यूज करके ही अपने रिलेशन में से टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करा पा रहा हूँ। तो अगर मैं आईडी एट्रीब्यूट को यूज करूँ तो ये एक कैंडिडेट की का काम करेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। एंड जैसे मैंने डिस्कस किया, एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, तो उस कैंडिडेट की में से किसी एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं और जो नहीं बनाते उनको हम ऑल्टरनेटिव कीज बोलते हैं। तो किसको बनाना है ये टोटली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिजाइनर का डिसीजन होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। सुपर की सबका सुपर सेट है। सुपर की में से अगर हम मिनिमल की को फाइंड कर लें जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है वो कैंडिडेट की है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है एक रिलेशन के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो, उसमें से हम जिसको प्राइमरी की बनाएंगे वो प्राइमरी की बन जाएगी। सो दैट मीन्स प्राइमरी की इज अगेन अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, बिकॉज 4 कैंडिडेट की 5 कैंडिडेट की में से किसी एक को हमने प्राइमरी की बनाना है। So this is all for today's lecture where we have discussed a little bit about relational model and the most important concept of keys। तो एक